Assalamu alaikum dear students. In this recorded lecture we are going to start a new chapter of chemistry, and the name of the chapter is states of matter. So the first topic is the particle theory of matter. Basically all the substance which we are using or which we see around us are made up of particles, and these particles are so small that we cannot see them with our naked eyes. For example water, if all the particles are same as each other, ठीक है, यानी in one substance, in a particular substance, if I'm talking about a table is made up of wood, and in a particular substance like wood, all the particles are made up of are same as each other. If I talk about using the particle theory, a substance can exist as a solid, liquid or a gas. As we already know that a substance can exist in three states, and or we can call it the three states of matter. The particle theory basically explains the behavior of a substance in three states. So if I talk about solid state, the example of solid state is ice water. To explain this phenomena, these states of matter, I talk about water, so it would be easy for you to understand. So the solid state of water is ice cube, and the particles are very tightly bound to each other in a particular pattern that is known as a regular pattern, and they are strongly attracted to each other, and they don't move because there is no space to move, or they can only vibrate on their spot. The second state is liquid state, in which we see the water. In the liquid state, the particles move around in and out of each other, and these particles are strongly attracted to each other, but not as strong as in solid, and they are not in a regular pattern. The third state is gaseous state, and steam is basically the gaseous state of water, and in this state the particles don't touch each other. The force of attraction between these particles is very low, or you can say very weak, and the particles move fast in all the directions, and there is no regular pattern. There is also a state we can compress the solid, liquid and gases. Basically solids cannot be compressed. उनका एक particular shape और particular pattern होता है, और उनके बीच में जगह नहीं होती. So we cannot compress solid, but we can compress the gases. इसकी एग्जाम्पल ऐसे है कि जैसे हमारे गाड़ियों में, हमारी कार्स में अक्सर सीएनजी सिलेंडर्स लगे होते हैं. तो सीएनजी सिलेंडर्स जो है वो यूजुअली हम डिस्कस ये करते हैं कि प्रेशर अच्छा होना चाहिए तो गैस ज़्यादा आएगी. व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट इज़ कि अगर प्रेशर अच्छा होगा तो बहुत तेज़ी से गैस कंप्रेस होकर सिलेंडर के अंदर भर जाएगी, और ज़्यादा गैस, फॉर एग्जांपल 6 to 7 और 8 kgs गैस उस सिलेंडर के अंदर आ जाएगी. लेकिन अगर प्रेशर अच्छा नहीं होगा तो स्लो गैस जब जाएगी तो उनके बीच में एयर आती चली जाएगी उस पार्टिकल्स के बीच में, और उसकी वजह से कम गैस उसके अंदर फिल होगी. यानी कम गैस फिल होने का मतलब है कि उसमें एयर, जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा होंगे, लाइक गैस के पार्टिकल्स कम होंगे और एयर के पार्टिकल्स ज़्यादा हो जाएंगे. तो जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतनी ही आसानी के साथ हम उस गैस को कंप्रेस कर पाएंगे. ये गैस की फॉर्मेट में तो कंप्रेशन होती है, लेकिन जो इसकी सॉलिड की फॉर्मेट में होता है वो एक्सपेंशन होती है. एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होती है. और एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन कैसे होती है? वो होती है टेम्परेचर के ऊपर. फॉर एग्जांपल यूजुअली अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स को देखें, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स हमारे घर के बाहर से जा रही होती है, के इलेक्ट्रिक वाली वायर्स, तो जब गर्मियाँ आती हैं ये थोड़ा सा लूज़ हो जाती हैं और सर्दियों में बिल्कुल तन सी जाती हैं. उसका रीज़न ये होता है कि ये एक्सपेंड करती हैं. अक्सर ऐसा होता है कि मेरे घर पे अगर कोई जार रखा हो, जैम का जार हो या वॉट एवर जार इट इज़, तो मैं उसको खोलूँ वो नहीं खुलता ईज़िली.
टाइट हो जाता है, एयर टाइट जिसको हम कह देते हैं, वो टाइट हो जाता है। लेकिन उसको ओपन करने के लिए देयर इज़ एन ईजीएस्ट वे कि हम उसको गर्म पानी में डाल देते हैं। तो गर्म पानी में डालने से क्या होता है कि वो जो जार, जो लिड होती है, जो लिड मेटालिक लिड होती है, वो एक्सपैंड हो जाती है और उसको हम गर्म पानी से निकाल के जब खोलते हैं तो एक्सपैंड होने की वजह से वो ईज़िली ओपन हो जाती है। तो लिक्विड्स सॉलिड्स के अंदर जो है वो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है और गैसेस में जो है वो कंप्रेशन होता है। नाउ ये तो हम डिस्कस कर रहे थे कि एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के बारे में, कि लिक्विड्स और सॉलिड्स और गैसेस के बारे में, लेकिन स्टेट्स ऑफ मैटर जो हैं वो चेंज भी होते हैं। जैसे कि अब इसमें 3 टॉपिक्स आते हैं, बॉइलिंग, एवापोरेटिंग और कंडेंसिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें कैंडल लाइट करें तो कैंडल लाइट करने के बाद आप देखेंगे जो वैक्स, जो कैंडल बनी होती है जिस वैक्स से, वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है टेम्परेचर की वजह से, ठीक है। यानी उसकी जो सॉलिड फॉर्मेट्स है वो चेंज हो जाती है, अपना स्टेट ऑफ मैटर वो चेंज कर लेती है लिक्विड में। इसी तरह अगर वी डिस्कस अबाउट वाटर, तो अगर हम टेम्परेचर कम कर देंगे तो वो आइस की फॉर्मेट में चेंज हो जाता है, यानी सॉलिड में चेंज हो जाता है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे यानी उसको हीट अप करना शुरू कर देंगे तो वो स्टीम की फॉर्म में चेंज हो जाएगा, दैट इज़ गैस। So if I talk about liquid to gas, when a liquid becomes a gas, the particles move faster and spread out. The attractive force between the particles become very weak. A substance in a liquid state become a gas by evaporating or by boiling. जब हम evaporate करेंगे या boil करेंगे तो ही जो है वो liquid से gas में change होगा और इनके बीच के जो particles के बीच में जो force of attraction है वो बहुत weak हो जाएगी। Evaporation happens when particles leave the surface of a liquid. The particles spread out from a gas. Evaporation can happen at any temperature. Evaporation किसी भी टेम्परेचर पे हो सकती है। यूजुअली अगर आप बीच पर जाएं या हम जिस तरह से सैंडस्पिट वगैरह या हॉक्स पे जाते हैं तो अगर आप देखें तो वहाँ पे कंटिन्यूसली एवापोरेशन हो रही होती है, दिन हो या रात हो। रात के टाइम थोड़ी कम होती है लेकिन दिन में तो हम उसको प्रॉपरली देख भी सकते हैं। थोड़ा ज़्यादा अगर टेम्परेचर हो तो हमें नज़र आ रही होती है कि वो प्रॉपर एवापोरेशन हो रही है, नज़र आ रहा होता है कि पानी उड़ता हुआ। इसके बाद है बॉइलिंग। बॉइलिंग अकर्स थ्रू आउट द होल ऑफ अ लिक्विड। व्हेन यू, अगर हम एक बीकर को हीट करेंगे, अच्छा बॉइलिंग ऐसा नहीं होता कि एक पर्टिकुलर जगह से बॉयल हो रहा है वाटर और दूसरी जगह से नहीं हो रहा, पूरा का पूरा लिक्विड जो है वो बॉयल होगा और बबल्स ऑफ वाटर पहले बनेंगे और फिर वो बबल्स ऑफ वाटर जो है वो स्टीम की फॉर्मेट में चेंज हो जाते हैं। बॉइलिंग तब होती है जब लिक्विड जो है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे पहुंच जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज़ 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे ही जो है वो बॉइलिंग होगी वाटर की। इसी तरह डिफरेंट सब्सटेंसेस के डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। लाइक नाइट्रोजन हैज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ -196 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरह इथेनॉल हैज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 78 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर का मैं आपको पहले बता चुकी हूँ 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। मर्करी का 357 डिग्री सेंटीग्रेड है। कॉपर का बहुत ज़्यादा है, दैट इज़ 2595 डिग्री सेंटीग्रेड। और सबसे ज़्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज़ डायमंड का है 5100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये इमेंस, मतलब ये आइडियल सिचुएशन है। बहुत ही कम ऐसा हुआ है कि 5100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए, एक्सेप्ट जब चेरनोबिल और ये वाला हुआ था, नागासाकी और हिरोशिमा और नागासाकी पे जब एटॉमिक अटैक्स हुए थे, उस वक्त जो है वो ये वाला सिचुएशन हुई थी कि इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो गया था कि डायमंड्स भी मेल्ट कर जाए और सैंड का सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी मेल्ट हो गई थी, बॉयल हो गई थी। नाइट्रोजन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा लो है और डायमंड और कॉपर का सबसे ज़्यादा हाई बॉइलिंग पॉइंट है। अच्छा, अगर कोई सब्सटेंस, इफ़ अ सब्सटेंस इज चेंजिंग इन स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू गैस तो वी कॉल इट एवापोरेशन या बॉइलिंग। बट इफ़ अ सब्सटेंस इज चेंजिंग इन स्टेट फ्रॉम गैस टू लिक्विड, यानी गैस से वापस लिक्विड में चेंज करा है,
देन इट इज़ नोन एज कंडेंसेशन। कंडेंसेशन की सबसे बेस्ट एग्जांपल होती है कि जब हमारे यहाँ बारिश हो रही होती है, यानी कि जो हमारे क्लाउड्स हैं वो क्लाउड्स किस फॉर्मेट में होते हैं, गैसियस फॉर्मेट में होते हैं, और फिर वो चेंज करते हैं अपने आप को लिक्विड फॉर्मेट में। तो इस यानी बारिश के कतरे वो जो गिर रहे होते हैं, तो दैट इज़ नोन एज कंडेंसेशन। और कंडेंसेशन के अंदर जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स की जो है वो एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्ग हो जाती है। अच्छा, राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग के जो सॉलिड लिक्विड से गैस और गैस से लिक्विड में जब ये चेंज हो रहा था, बट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस के सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से वापस सॉलिड में कैसे चेंज होगी। यानी अब जो हम टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज़ नोन एज मेल्टिंग फ्रीजिंग वाला। ठीक है, तो अगर किसी स्टेट को सॉलिड से लिक्विड में चेंज कर रहे हैं, इफ़ वी आर चेंजिंग अ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, देन इट इज़ नोन एज मेल्टिंग। द ईजीएस्ट एग्जांपल इज़ अगर हम आइस क्यूब को नॉर्मल टेम्परेचर पर रख दें, तो जैसे जैसे उसका टेम्परेचर कम होता जाएगा वो सॉलिड से लिक्विड में आ जाएगी, और इसको हम बोलते हैं, दिस प्रोसेस नोन एज मेल्टिंग। और इसमें जो है वो पार्टिकल की अरेंजमेंट्स चेंज हो जाती हैं, उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी चेंज हो जाता है। अब डिफरेंट सब्सटेंसेस के डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट है, जैसे कि नाइट्रोजन का मेल्टिंग पॉइंट है -210 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरह मरकरी का मेल्टिंग पॉइंट है 39 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इसी तरह गोल्ड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, दैट इज़ 1063 डिग्री सेंटीग्रेड, और कॉपर का 1083 डिग्री सेंटीग्रेड। इसीलिए हम यूजुअली कॉपर वायर्स यूज़ करते हैं। कॉपर वायर यूज़ करने का एक रीज़न ये है कि गोल्ड वायर्स भी यूज़ किए जा सकते हैं, क्योंकि गोल्ड वायर बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, बट बिकॉज गोल्ड इज़ वेरी प्रेशियस और बहुत कॉस्टली पड़ता है, इसलिए हम गोल्ड वायर्स यूज़ नहीं करते एंड वी यूज़ कॉपर वायर्स, क्योंकि एक तो इसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा है और ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी भी है। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट कैसे यूज़ होता है? मेल्टिंग पॉइंट यूज़ करते हैं कि एक सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारी चीज़ें होती हैं वाइट कलर की। ठीक है, एक वाइट कलर का सॉलिड था किसी स्टूडेंट के पास, तो जब उसने इसका मेल्टिंग पॉइंट चेक किया तो दैट इज़ 561 डिग्री सेंटीग्रेड। अब उसने एक चार्ट उठाया कि डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट पे, डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट मतलब किसके सब्सटेंस का क्या क्या मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो पता चला कि 561 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो कैल्शियम का मेल्टिंग पॉइंट है। तो ईज़िली इससे हमें पता चल जाता है कि ये कौन सा मेटल है। मेल्टिंग टेम्परेचर से हमें ये भी पता चलता है कि सब्सटेंस की प्योरिटी क्या है। अगर इसका एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट है, यानी तेज़ी से मेल्ट हो जाता है, ये किसी चीज़ के साथ मिक्स हुआ नहीं है, यानी कि फ़ौरन अपने, जैसे फॉर एग्जांपल कि कॉपर है, कॉपर पे जैसे ही 1083 डिग्री सेंटीग्रेड आया और कॉपर मेल्ट कर गया, दैट मीन्स कि कॉपर के अंदर किसी भी चीज़ की मिक्सिंग नहीं हुई हुई है। लेकिन कॉपर को मैंने एक बार मेल्ट किया वो 1083 पे हुआ, दूसरी दफ़ा किया वो 1089 पे हुआ, तीसरी दफ़ा किया वो 1081 पे हुआ, या फिर आहिस्ता आहिस्ता पहले थोड़ा सा मेल्ट हुआ, फिर थोड़ा सा मेल्ट हुआ, फिर थोड़ा सा, यानी 1063 पे थोड़ा सा मेल्ट हुआ, फिर 1083 पे थोड़ा सा मेल्ट हुआ, फिर 1089 पे थोड़ा सा मेल्ट हुआ। दैट मीन्स कि इसमें कुछ और एलिमेंट्स, कुछ और मेटल्स मिक्स किए हुए हैं जो डिफरेंट स्टेजेस पे मेल्ट होते रहें। ठीक है, तो इससे भी हमें पता चल जाता है कि सब्सटेंस जो है वो कितना प्योर है। अच्छा, ये तो था मेल्टिंग। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट फ्रीजिंग। फ्रीजिंग में क्या होता है? अगर लिक्विड से सॉलिड में चेंज करेंगे, जैसे कि वाटर, आई एम अगेन गिविंग यू द एग्जांपल ऑफ वाटर। इफ़ वी टॉक अबाउट वाटर, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और वाटर को अगर हम फ्रीज़र में रख देंगे वो आइस की फॉर्मेट में चेंज हो जाता है एंड दैट इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट, और ये इसको इस प्रोसेस को फ्रीजिंग कहते हैं। इसी तरह बटर है, बटर भी मेल्ट हो जाती है। अगर हम नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर रखें तो बटर मेल्ट हो जाती है, और जो इस वक्त हमारा कराची का टेम्परेचर है इसमें तो बटर फ़ौरन मेल्ट हो जाती है। ठीक है, 36-37 डिग्री सेंटीग्रेड पे बटर मेल्ट हो जाती है। लेकिन इसको अगर हम फ्रिज में रख दें तो फ्रिज का टेम्परेचर 14-15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इस पर जो है वो बटर मेल्ट नहीं होती। तो दैट इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बटर।
अच्छा, ये मेल्टिंग, फ्रीजिंग दैट और बॉइलिंग, एवापोरेटिंग, दैट वाज अ नॉर्मल टॉपिक्स, ये हम हमेशा से ये नाम सुनते जा रहे हैं। बट देयर इज़ वन थिंग दैट इज़ अनकॉमन, अनयूजुअल, जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, दैट इज़ सब्लिमेशन, और वी कैन कॉल इट सबलाइमिंग। सबलाइमिंग क्या होती है? दैट इज़ अ न्यू कॉन्सेप्ट। सबलाइमिंग में क्या होता है, कुछ सॉलिड्स तो ऐसे होते हैं कि जिनको अगर हम मेल्ट करते हैं तो वो फ़ौरन जो है वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। जैसे वाटर को हमने मेल्ट किया, वो लिक्विड में चेंज हो गया। बट देयर आर सर्टेन सॉलिड्स जो अगर हम उनको मेल्ट करने की कोशिश करेंगे, यानी उनका टेम्परेचर कम या ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे, तो वो सॉलिड से लिक्विड में आते ही नहीं है। दे चेंज डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस, वो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में चेंज हो जाते हैं, और इसको दिस प्रोसेस इज़ नोन एज सब्लिमेशन या सबलाइम। ठीक है, जैसे कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, अक्सर इसकी मैं आपको एग्जांपल दूं, यूजुअली हमारे यहाँ आइसक्रीम्स में ऐसा होता है। मैं अगर अपनी एग्जांपल दूं तो मेरे घर पे एक दावत हुई, हमने बाहर से आइसक्रीम मंगवाई, तो जिस कंटेनर के अंदर आइसक्रीम आई, थर्मोपोल का वो कंटेनर था, उस थर्मोपोल के कंटेनर के साइड्स में सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड उन्होंने रखी हुई थी, और उसके अंदर जो है वो आइसक्रीम रखी थी उस कंटेनर के अंदर। ठीक है, यानी आइसक्रीम के साइड्स में उन्होंने सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड रखी हुई थी। अब ये सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, मेल्ट होकर पानी नहीं बनती। अब हम क्या करते थे, हम आइसक्रीम उस कंटेनर, हमें किसी फ्रिज की ज़रूरत नहीं थी, हम वो आइसक्रीम निकालते थे, हम सर्व करते थे, एंड आफ्टर दैट जब हमारी आइसक्रीम ख़त्म हो गई, हमने उस थर्मोपोल में से निकाल कर सॉलिड जो कार्बन डाइऑक्साइड थी उसको अपने सिंक में डाल दिए। व्हाट हैपन्स आफ्टर दैट इज़ कि सिंक में डालने के बाद होना ये चाहिए था कि हम यूजुअली ऐसा होता है कि जब आइस होती है, हम आइस के ऊपर जब पानी डालते हैं वो मेल्ट हो जाती है। लेकिन व्हाट हैपन्स आफ्टर दैट इज़ कि जब सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर हम जितना भी पानी डालते जा रहे थे वो मेल्ट नहीं हो रही थी, यानी उसका जब जैसे हम टेम्परेचर चेंज करते जा रहे थे, दैट वॉज नॉट मेल्टिंग, इंस्टेड इट वॉज कन्वर्टिंग इनटू गैस। उसमें से बहुत ज़्यादा तेज़ जो है वो वाइट कलर की फ्यूम्स निकल रही थी, और वो गैस में कन्वर्ट हो रही थी। ठीक है, सो दैट इज़ नोन एज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, इसको ड्राई आइस भी कहते हैं, और दिस प्रोसेस इज़ नोन एज सब्लिमेशन। इसी तरह सॉलिड ग्रे आयोडीन भी होता है, ये भी सबलाइम करता है। इसको भी अगर इसका टेम्परेचर चेंज किया जाए तो ये फ़ौरन जो है वो चेंज कर लेता है अपने आप को गैसियस स्टेट में।